dear students, welcome to my channel. So today we are going to do something new. Today I am not going to teach you any chapters, but we are going to assess ourselves, how well we are prepared for our first semester. Now only few days are left, 2 months are left, and in the month of November, most probably as given in the circular that in the month of November your first semester exam will start. So your first semester exam for ICSE class 10 will be MCQ based exam. So how we are going to prepare it? Till now many students are confused, sir, what to do, how to do. No need to worry at all. Okay, so one by one I'll prepare all the videos and I will upload it, and you can check or you can assess yourself how well you are prepared and how can you prepare and what strategy you can apply to prepare yourself. Okay, so in this video we will be doing MCQ based questions based on union legislature. That is one unit. For first semester we have to prepare from civics only one unit, that is union legislature, which includes Lok Sabha, Rajya Sabha. Okay, so how questions can be formed. Okay, I did not copy these questions from any website or something like that. Okay, I prepared it on my own from the textbook, whichever book I have. I went through it, and according to my suitability, what type of questions can be asked, I made it for your preparation. Okay, so let's jump into that part and we'll try to find out whether the MCQs prepared by us is correct or not, whether you can do the answers properly or not. So from here few of the answers I will do it for you, and some of the questions you can check yourself. Okay, for that what you have to do is that while watching this video you can write the questions, or you can choose the correct answer and write down in the comment box, and you can check it whether the answers are correct or not. Okay, so ICSE class 10 history and civics union legislature. It is a sample question. Okay, the board has not sent us the questions till now. I have prepared it for your benefit. Okay, so we cannot wait long for the council to send the sample MCQ questions. Okay, so let us prepare ourselves. Okay, so you can see here, let us see how many questions are there. You must have patience, and I request all my dear students to go through each and every MCQ questions till the last. Let us see how many questions are there and who can reach to the last question, and how many of you can answer the correct answers. Okay, choose the correct answers. Okay, so you can see here the first one, the word parliament is derived from dash term. So you can see the options: American, French, Latin and English. So every one, when the chapter was started by your teacher, or when you started going through it, definitely you might have heard about this term French. The correct answer is French. The word parliament is derived from French term. Okay, French means French term parliament, Parlement. Okay, that was the term and it was derived from French. Okay, very simple. First one. Second one, you can see here, in modern times, dash parliament is known as the mother of all parliament. So I mean to say, which parliament is known as the mother of all parliament? So this question is for you. You have to write or choose the answer. So this question is for the students. You do it and write down in the comment box. Okay, now number 3, in India the parliament house, originally known as, I missed over here, it is council house, came in being in which year? That means earlier in India, Parliament House originally was known as Council House. Okay, came into being in which year? So answer is 1927. Okay, you can just note it in your copies. Okay, now number 4, what are the 3 constituents of the parliament? Let us check. Is it A, Lok Sabha, Vidhan Sabha, Rajya Sabha? Is it B, Lok Sabha, Rajya Sabha and the speaker? Is it number C, Lok Sabha, Rajya Sabha and the president? Is it D, Lok Sabha, president and the prime minister? So according to me, my dear, the option number C would be correct. Okay, that is Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. That means the 3 constituents of the Indian parliament are Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. Okay, now number 5, what is the maximum strength of Lok Sabha? This questions you have to do it. This question is for the students. You do it, check yourself whether you know it or not, because it's very, very simple. Okay, now what is the lower chamber of the parliament called?
So this question again is for the students. You can do it. Okay. Now this one. Number 7. How many members are nominated by the president to Lok Sabha? How many members? So we have heard that president nominates 2 members, right? Answer is B. President nominates 2 members to the Lok Sabha from the Anglo-Indian community, but we must be sure that president must be confirmed that Anglo-Indian community is not properly represented, then only he can nominate. Otherwise, if the Anglo-Indian community is properly represented, then this 2 member is also not required. So here, how many members? The answer is 2. How many members? 2 Anglo-Indian. Okay, 2 members are nominated by the president from the Anglo-Indian community. Okay. Now let us move to question number 8. So this question again is for the students. The Dash Amendment 1989 lowered the voting age from 21 years to 18 years. Okay, so today you know universal adult franchise, the person attaining the age of 18 and above are given the right to vote. Okay, earlier it was 21 years, now it is lowered to 18 years. So through which amendment? This age was reduced from 21 to 18. So option is 42nd Amendment Act, 53rd Amendment Act, 61st Amendment Act, 62nd Amendment Act. The answer you have to find it. Okay dear, little bit of practice, hard work, you can also do it. No, सारा कुछ मैं ही बता दूंगा तो आपका तो काम ही नहीं हुआ है ना. So number 9, what is the term of Lok Sabha? चलो बच्चों ये भी आप खुद ही ढूंढ लो. ठीक है, what is, चलो मैं ही बता देता हूँ. What is the normal term? Normally the term of Lok Sabha is 5 years. ठीक है, 5 years. 5 years नॉर्मल टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 5 years, लेकिन उससे पहले भी ये डिसॉल्व हो सकते हैं इफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड. ठीक है. नाउ नंबर 10, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? सबसे पहली बार लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? व्हेन? 1947 को हुआ था, 1950, 1952, 1957. सो मेरे हिसाब से 1947 में तो इलेक्शन हुआ ही नहीं. इन 1947 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूशन आपका इनफोर्स हुआ 1950 में, है ना, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स. सो उसके बाद जो हुआ इलेक्शन 47, 48, 49, 50, 51, 52, सो 5 साल हो ही चुका था. सो द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया इन विच ईयर? 1952. ओके, 51, 52, 52. ओके, अब देखिए, आप लोग चेक कीजिए. ठीक है, बिफोर आई टेल द आंसर, आपको आंसर खुद ब खुद पता होना चाहिए. ठीक है, आप लोग चेक कर लो कि वेदर माय आंसर्स, योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? जल्दी जल्दी सोचिए आप लोग. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सुकुमार सेन? नहीं, ये तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. ओम बिरला, ये तो प्रेजेंट के हैं. सुष्मिता महाजन, ये तो पिछला लोकसभा में स्पीकर थे. तो हमारा आंसर होगा डी, जी.बी. मावलंकर. ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लो. हाउ इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभा स्पीकर कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग लगाइए. कैसे? बाय द वोटर्स ऑफ इंडिया, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या फिर बाय द प्रेसिडेंट. ये आंसर आप खुद चूज कर लो कौन सा सही होगा. चेक करो वेदर यू नो इट प्रॉपरली और नॉट. ठीक है. नंबर 13. ठीक है, नंबर 13. चलिए, व्हेन वाज एंटी डिफेक्शन एक्ट पास्ड? एंटी डिफेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? ये एक्ट है क्या, है ना? समटाइम व्हाट हैपेंस इज दैट आई कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम वन पार्टी, बट आफ्टर द इलेक्शन आई चेंज माय पार्टी, है ना? इससे क्या हो रहा है? It's a betrayal for the party as well as for the voters, isn't it? To stop the party members changing the party, Anti-Defection Act was passed. So कब पास हुआ था? 1950 में, 1885, 1952 या 1985? So the correct answer is A, B, C, D. ठीक है, the correct answer is D. ठीक है, 1985 में Anti-Defection Act was passed. ठीक है बच्चों. ओके, आपको बोर लग रहा होगा, लेकिन आपको इस तरह से ही पढ़ाया जाना चाहिए. ठीक है. हाउ आर सीट्स डिटरमाइन इन लोकसभा? लोकसभा में सीट्स कैसे डिटरमाइन होते हैं? जैसे कि किसी स्टेट में 45 है, किसी में 80 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है ना? जब व्हाट यू कॉल इट, सिक्किम से एक ही लोकसभा मेंबर आते हैं. कौन सा बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. सो द आंसर इज सी,
on the basis of population. It depends upon the population. So according to population, representations are done in the Lok Sabha. ठीक है. नाउ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा ये आपका. ठीक है. व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? 250, 252, 545, 552. मैं बता देता हूँ, 545 और 552 तो होगा ही नहीं. ठीक है. इन दो में से एक है आपका सही आंसर, ए और बी में से आप चूज कर लो. ठीक है. देखो, चेक करो वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. अब नंबर 16, व्हाट इज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? ये भी आप खुद ही कर लो. ठीक है. अब number 17, mostly the students get confused over here. okay, 16 भी आप खुद ही कर लेना. okay, what is अभी का प्रेजेंट स्ट्रेंथ राज्यसभा का कितना है? ठीक है. नंबर 17, व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का कितना टर्म? जैसे लोकसभा का 5 years होता है, तो राज्यसभा का कितना टर्म होता है? इज देयर एनी टर्म फॉर राज्यसभा? Is it A 5 years? Is it B 6 years? Is it permanent house? So accordingly, my dear, I have already taught you many times that Rajya Sabha has no term. Rajya Sabha has no term. So accordingly, जब term ही नहीं है तो Rajya Sabha is a permanent house. So answer number C. Answer C is the correct answer. ठीक है, ठीक है. Permanent house. So don't get confused. Please, I'm requesting all the students, my dear. Rajya Sabha has no term. Rajya Sabha is a permanent house. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन. Every 3 years, 1/3 of the members retire and new members are elected to fill the vacant seat. क्या ये सही है? Is it true or false? Every 3 years, is it correct? Every 3 years, 1/3 of the members retire and new members are elected to fill the vacant seat. Is it correct? So, accordingly, my dear, the statement is false. Now you may say, sir, how, sir? Every 3 years, ये गलत है my dear. Every 2 years, हर 2 साल के बाद. Okay, every 2 year, हर दूसरे साल 1/3 of the members retire and new member fills the vacant seat. So this statement is incorrect. ठीक है. अब नंबर 19, who summons the sessions of Rajya Sabha? बताइए. Who summons? Summon means to call. राज्यसभा का पहला सेशन कौन उन्हें बुलाता है? स्पीकर बुलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? सो ये आपको बताना है आंसर. सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से. ठीक है. चेक योरसेल्फ. शर्म की बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए. ओके, आपका राइटिंग भी इंप्रूव होगा. ओके, नंबर 19, व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस? 3 सेशन ऑलरेडी. हाउ मेनी सेशंस आर देयर? 3 सेशंस. मानसून सेशन, ओके सॉरी, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर, 3 सेशन होते हैं ना. सो व्हाट शुड बी द मिनिमम गैप बिटवीन 2 सेशन? 2 सेशन, मानसून सेशन और आपका विंटर सेशन के बीच में या फिर बजट सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? सो यस, व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? बी. मिनिमम गैप शुड बी 6 मंथ. ठीक है. सो देखिए, मैं 20 में हूँ, शायद आपने 21, 22 भी आंसर ढूंढ लिया. ठीक है ना. चलिए चेक करते हैं. Who is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Ex office means by default. ठीक है. Who is the ex office chairperson Rajya Sabha? So answer is Prime Minister. Speaker of Lok Sabha? Deputy chairman? नहीं बच्चों. The answer is Vice President. ठीक है. Whoever is the Vice President of our country by default is the chairman of Rajya Sabha. ठीक है. जैसे लोकसभा में स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा में स्पीकर को इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट whoever is the vice president of our country is the chairman of राज्यसभा. ठीक है. सो आंसर इज ए, वाइस प्रेसिडेंट. अब नंबर 22, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी पास्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. ओनली बाय द गवर्नमेंट. इज इट करेक्ट? क्या सही है? नो कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट पास करता है? बिल्कुल गलत. आंसर इज रॉन्ग. ओके. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय द ऑपोजिशन. ठीक है. चलो मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ ना, थोड़ा मजा आएगा हाईलाइट. चलिए हाईलाइट. नंबर 23. ठीक है. हु प्रिसाइड्स? चलिए ये क्वेश्चन है, पहले से ही मुझे हाईलाइट करना चाहिए था, मैं भूल गया. चलिए कोई बात नहीं. ओके. Who presides over the meeting of Rajya Sabha in the absence of Vice President? जब Vice President absent है, उनके जगह में कौन मीटिंग पर प्रिसाइड करते हैं? ठीक है. The option is Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Prime Minister of India, Opposition Leader of the party. कौन है बच्चों? बताइए कौन?
चलिए द आंसर इज सी नहीं, डी नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में जाते हैं। बच्चों बोर हो गए होगे, बोर होने की बात नहीं है, आपको पढ़ना है, सही तरीका से प्रैक्टिस भी करनी है। देखिए आप लोगों के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, पहले क्वेश्चन निकालते हैं, उसको फिर टाइप करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उसको आप अपलोड करेंगे, ठीक ना, सब आप ही के लिए बच्चों। अब नंबर 24, ये थोड़ा सा आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। विच सिस्टम, नंबर 24, विच सिस्टम इज यूज टू एलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा? विच सिस्टम? क्यूमुलेटिव वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? तो मैं बता दूं, आपने क्या सोचा, ए बी सी, ए बी सी में से कौन सा सही आंसर होगा? चलिए चेक करते हैं, आप मन में सोच के रखिए कौन सा सही होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, अब नंबर 25, अब नंबर 25, देखिए क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा है, हैव पेशेंस, क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आपको ज्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। व्हाट इज जीरो आवर इन द पार्लियामेंट? जीरो आवर किसे कहते हैं? कब होता है जीरो आवर? when the money bill is introduced in Lok Sabha, that is zero hour. When the proposal of opposition is considered, that is zero hour. The first hour of the session is called zero hour. Huh? When matter of utmost importance is raised, that is zero hour. अब बताइए जीरो आवर कौन है, कौन है जीरो आवर? ठीक है, व्हाट इज जीरो आवर इन द पार्लियामेंट? सो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है बच्चों, ऑप्शंस में गड़बड़ है, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। जीरो आवर, ठीक है, ये सब ऑप्शंस को आप गलत कर दो, ठीक है, ये सब कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट आवर ऑफ द सेशन, ये जो फर्स्ट आवर होता है क्वेश्चन आवर के लिए होता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ व्हाट इज जीरो आवर। जीरो आवर मीन्स आफ्टर फर्स्ट आवर, ठीक है, 11 से 12 क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 दैट इज कॉल्ड जीरो आवर। ठीक है, after the first hour of the session, the second hour which is blank, that is zero hour. Okay, that is for general discussion. ठीक है, so यहाँ पर ये सारा प्रपोजल जो है ना, ये आप फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। when the money bill is introduced in लोक सभा, गलत। when the proposal of opposition is considered, गलत। the first hour of the session, गलत। when matter of utmost importance is raised, चलिए ये भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर गलती हो गया, इसको हम लोग काट नहीं सकते। चलिए नंबर 26 में चलते हैं। ठीक है, नंबर 26, राज्यसभा इंजॉयस, ठीक है, नंबर 26 क्या है देखिए, राज्यसभा इंजॉयस मोर पावर देन लोकसभा इन द केस ऑफ मनी बिल। राज्यसभा इंजॉयस मोर पावर इन द केस ऑफ मनी बिल, क्या सही है ये? इज इट करेक्ट? हाँ बच्चों, आप डेफिनेटली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मनी बिल राज्यसभा हैज नो पावर। ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी बिल राज्यसभा हैज नो पावर, नॉन मनी बिल में भी नहीं है। तो कौन सा सही आंसर? अमेंडमेंट नहीं, राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया है, सो आंसर इज नंबर सी। ओके, आंसर इज नंबर सी। ठीक है, नाउ नंबर 27, नंबर 27, हाउ लॉन्ग कैन राज्यसभा रिटेन द मनी बिल? ठीक है, व्हेन द बिल, मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा, पूछना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा, है ना। व्हेन मनी बिल इज सेंट टू राज्यसभा, कितने दिनों तक वो बिल, मनी बिल को रख सकते हैं? कितने दिन? 10 दिन, 12 डेज, 14 डेज, 1 मंथ, कितने दिन? सो द आंसर इज बी, रॉन्ग, ए रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज 14 डेज। ठीक है, 14 डेज money bill can be retained 14 days. After 14 days also bill is not returned, then that will be declared as passed by Rajya Sabha. चलिए ठीक है, नंबर 28 देखते हैं क्या है। Who presides, चलिए नंबर 28, Who presides over the joint session of the Union Parliament? Two houses, दोनों हाउस का जब जो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ बैठना होता है, ठीक है, दोनों, so who will be the presiding officer? Because in Lok Sabha, Speaker is the presiding officer. In Rajya Sabha, the Vice President is the presiding officer. So when both the houses sits, who will be there? Speaker और Vice President दोनों साथ बैठेंगे? नहीं. Correct answer is B. The Speaker presides over the joint session of the Parliament. ठीक है. Number 29. चलिए हाईलाइट करें. To whom must an MP address his resignation letter?
रिजाइन, सपोज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वांट्स टू रिजाइन, किसको रेजिग्नेशन लेटर देंगे वो? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, किसको रेजिग्नेशन लेटर वो सौंपेंगे? ओके, टू हुम मस्ट एन एमपी एड्रेस इज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन? सो बच्चों आपके मन में आंसर आ ही गया होगा, है ना? तो करेक्ट आंसर इज द स्पीकर। ठीक है बच्चों, स्पीकर इज द one to whom the resignation letter must be submitted. Okay, now 30, अब थोड़ा देर बच्चों, थोड़ा little bit, इतना आपने वेट कर ही लिया। चलिए, where can, चलिए यहाँ रखता हूँ, where can the money bill be introduced? money bill कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? where can the money bill be introduced? तो हमने पहले देखा था ना, राज्यसभा has no power over the money bill, तो आपका आंसर तो मिल ही गया यहाँ पर। where can the money bill be introduced? where? लोकसभा में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? नहीं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, where can a money bill be introduced? so answer is लोकसभा। okay, in terms of money bill, Rajya Sabha has no power, Lok Sabha only, in Lok Sabha only money bill can be introduced। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भी है क्या? चलिए देखते हैं। ओके, और है। ओके, चलिए, which state has the highest number of Lok Sabha seats? चलिए बच्चों बताइए, which state has the highest number of Lok Sabha seats? आपको पता ही होगा। सबसे पहले आप सोचना है कि कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ओके, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कौन सा है? बताइए, जल्दी 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 सोचिए। चलिए, ये आंसर आप खुद ही कर लो। ठीक है, ये आंसर आप खुद ही चूज कर लो। ठीक है, देखिएगा आंसर सही है कि नहीं। ओके, नंबर 32, कैन द राज्यसभा बी डिसॉल्व? क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकता है? जब हमने पहला क्वेश्चन किया था, याद है, कैन व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा, वहीं पर हमने बोला था राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, है ना? तो उस हिसाब से क्वेश्चन तो आपको आंसर मिल ही गया। कैन राज्यसभा बी डिसॉल्व? बताइए बच्चों, आंसर इज नो, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है, नंबर 33, व्हेन वाज द लोकसभा डिसॉल्व? ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एक्सपायरी। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लिख कर जरूर बताइएगा। आप सिंपल एक काम करो, नंबर, क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर आप लिख दो, हो जाएगा। ठीक है, वेदर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, व्हेन वाज लोकसभा डिसॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर एक्सपायरी? 1953, 1963, 1971, 1981। सो ये है आपके लिए। ठीक है, now 34, who, on whose advice does the president dissolve the Lok Sabha? किसके एडवाइस पर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो चीफ जस्टिस का यहाँ कोई काम नहीं है ना? स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी इतना पावर तो नहीं है कि वो बोलेंगे प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का भी ऐसा कोई बात नहीं है। तो आंसर इज सी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? इफ ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट dissolve the Lok Sabha, he can do so. Okay, now the next one, who decides whether a bill is money bill? There are two types of bill. ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, who decides whether the bill is money bill? Who decides? There are two types of bill, ordinary bill, money bill. तो ये मनी बिल, ये जो बिल है, ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, कौन डिसाइड करेगा? तो आंसर देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द स्पीकर। सो इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ये एमसीक्यू मैंने खुद ही प्रिपेयर किया है। ठीक है, इसलिए मैंने अपना नाम दिया है। ठीक है, so these are the 35 MCQ questions which I have prepared for your preparation. So आप बच्चों को करना क्या है, आप इसको प्रैक्टिस करो, हो सके तो आप इसको लिख लो। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं PDF आपको अपलोड कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी मैं कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो, है ना, ये थोड़ा ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रिपरेशन था, ठीक है, ऑन यूनियन लेजिस्लेचर, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना।
इन फ्यूचर इफ यू नीड सच टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लीज टेल मी। वैसे तो मैं ये नेक्स्ट हिस्ट्री पर मैं एमसीक्यू जरूर बनाऊंगा। आशा करता हूँ आप लोग इसको जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू डियर, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।